Now we start with cross product of two vectors. In the previous video we discussed about the dot product and resolution of a vector. In just 1 minute we want to revise it. Suppose this is a vector A, this angle is theta, then this component is A cos theta and this component is A sin theta. These two are called rectangular components of this vector A. Earlier we have also defined that the dot product of two vector A dot B is equal to AB cos theta. It is called dot product or scalar product. Now we come to the cross product of two vectors. So cross product of two vectors, that is A cross B. It is represented by A cross B. This is the cross product of two vectors. And why it is called cross? Because there is a cross sign to represent it between A and B. So this cross product of a two vector, or the magnitude of cross product of two vector, is defined as the product of their magnitude with the product of sine of angle between them. So how will define the cross product? The magnitude of cross product of two vectors is defined as the product of their magnitudes and the product of sine of angle between them. If theta is the angle between vector A and vector B, between vector A and vector B, or it makes angle vector B with vector A, then A cross B magnitude modulus, that is the magnitude, is given by AB sine theta. And if we find the direction, then it will be given by AB sine theta c cap, where c cap is a unit vector which gives direction of vector A cross vector B. It is a vector quantity. This cross product is a vector quantity. डॉट प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी थी. डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? ए बी कॉस थीटा स्केलर, ए स्केलर, बी स्केलर, सो दैट इज स्केलर क्वांटिटी, दैट इट इज कॉल्ड स्केलर product, and there is a dot between vector A and vector B. Here there is a cross between vector A and vector B. So this is the magnitude, and this is magnitude as well as direction. So what is the C cap? C cap is a unit vector, and as we know, the unit vector always provides the direction. तो ये डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा यूनिट वेक्टर सी. किसकी डायरेक्शन बताएगा? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन सी वेक्टर के लोग होगी, और यही आप इस डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं. अब देखिए कैसे होगी डायरेक्शन सी वेक्टर. एंड दिस सी कैप इज ए परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी, एंड गवर्न बाय राइट हैंड स्क्रू रूल. राइट हैंड स्क्रू रूल, कभी कभी इसको हम राइट हैंड थंब रूल भी कह देते हैं, थंब रूल. अब देखिए डायरेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है. ये विल ट्राई टू डिफाइन द डायरेक्शन, टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन. कैसे निकालेंगे डायरेक्शन इसकी? ए क्रॉस बी की. Since it is a vector quantity and we have to find its direction, so magnitude is AB sin theta and direction is C cap. So what is this C cap? It is given by right hand screw rule. और right hand screw rule कैसे बनाया गया? अगर हम right hand में screw driver को hold करें, suppose vector A and this is vector B, and you take this angle theta, then this will be the direction of C cap, and that is equal to A cross B. Either you will write the direction of A cross B vector, or it is the direction of C cap, because C cap provides the direction of A cross B. And how can we justify? If we hold screwdriver in our right hand, देखिए ये पेंचकस है, अपने हाथ में होल्ड करें, इधर थंब है उधर फिंगर्स हैं, और इसको ऐसे घुमाएं, इस तरह से घुमाएं. अगर इस तरह से घुमाएंगे, ये आपका पेंच है, इस पे अगर आप घुमाएंगे स्क्रू ड्राइवर इन दिस डायरेक्शन, द स्क्रू विल मूव फॉरवर्ड. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, एंड व्हेन इट इज जस्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज रोटेटेड, देन द स्क्रू कम्स आउटवर्ड, देन इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. सो व्हेन यू रोटेट, थंब ऑन द फर्स्ट, last finger on the last, when you rotate like this, if you rotate like this, then the screwdriver will move, the screw will move in the forward direction. So this is the direction of this A cross B. But if you take this vector A, this vector B, and then if you take this angle B to A, then it is B cross A, and this B cross A will be downwards. It will be downwards. मोर एक तरीका तो ये होगा डिफाइन करने का, जिसको हम राइट हैंड स्क्रू रूल से लेते हैं. हालांकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूल है, इसका हम सप्लीमेंट्री रूल्स बना लेते हैं, आसान रूल बना लेते हैं अलग अलग केसेस में. जैसे एक हमने बताया राइट हैंड थंब रूल है. अब देखिए राइट हैंड थंब रूल कैसे होता है. राइट हैंड थंब रूल भी कई बार इस तरह से यूज हो जाता है. अगर आप इस तरह से घुमा रहे हैं,
कोई भी ऑब्जेक्ट, जनरली राइट हैंड थंब रूल को हम किस में यूज करते हैं, सर्कुलर मोशन में यूज करते हैं, रोटेशनल मोशन में यूज करते हैं। अगर कोई रोटेशन मोशन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये डायरेक्शन किधर जाएगी, अपवर्ड जाएगी, और अगर ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में किधर जाएगी डायरेक्शन, डाउनवर्ड जाएगी वेक्टर की। कैसे जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इस तरीके से घूमता है, ये बनता है कर्ल बनता है, कर्ल बनता है तो डायरेक्शन किधर आती है, अपवर्ड, और अगर नीचे जाता है तो किधर जाएगी, डाउनवर्ड्स। तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए अपवर्ड्स और क्लॉकवाइज मोशन के लिए डाउनवर्ड्स डायरेक्शन होती है। तो कई बार हम इस डायरेक्शन को के रूल भी निकालते हैं। हम इसके लिए एक सिंपल रूल बताएंगे, एक आसान रूल बताएंगे निकालने का क्रॉस प्रोडक्ट का, किस तरह से फाइंड करते हैं। तो फिलहाल अगर फंडामेंटल रूल की बात करें, स्टैंडर्ड रूल की बात करें, क्रॉस प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड रूल है, कौन से वाला रूल है, दैट इज राइट हैंड स्क्रू रूल। सीधी सी बात है, आप सीधे हाथ में पेचकस ले लीजिए, पेचकस को घुमाइए, जिस डायरेक्शन में स्क्रू जाएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एक बात तो ये हमें समझ लेनी चाहिए, ठीक है। जहां हम इसको अप्लाई करेंगे फिर उसको डिटेल में बताएंगे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट, there are certain examples. First example ले सकते हैं, it is tau. Tau is equal to r cross f. This is the example. Second example, this is a linear velocity. V vector is equal to omega vector cross r vector. Omega cross r. Omega is the angular velocity, r is the radius vector, then it is v equal to omega vector cross r vector. So many other examples are there. Angular momentum, ये आगे पढ़ेंगे क्या होता है, angular momentum. L vector is equal to r vector cross p vector. R is the perpendicular distance from the axis of rotation. P is the linear momentum that it is given by r cross p. So these are the examples of cross product. So what is the direction of L perpendicular to both r and p and governed by which rule? Right hand screw rule. What is the direction of this V perpendicular to both omega and r and governed by right hand screw rule? Direction of torque will be perpendicular to both r and f vector governed by right hand screw rule. Right hand screw rule क्या हमने बताया कि right hand में screw driver से जब आप rotate करते हैं, so what will be the direction of motion of the screw, either forward or backward, upward or downward, that is the direction of cross product. तो C cap की ये direction होगी. तो this is the formula, definition, product of magnitude of A, magnitude of B and angle, sign of angle between them. Definition, formula in direction form, that is vector quantity represented by cross, and these are the example. देखिए स्केलर में ये सब कहानी नहीं होती, स्केलर में तो मल्टीप्लिकेशन होता है, either a into b और b into a और a multiplied by b और b multiplied by 3 into 4 12, 4 into 3 12, ये तो 12 भी आता है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट जब वेक्टर्स का लेते हैं तो उसको अलग अलग तरीके से आप डिफाइन करते हो, whether it is cross product, it is dot product और it is a product of a vector by a scalar। तो यहाँ हम क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट बन गया बच्चों, इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, वी कम टू प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। Does not obey commutative law. It does not obey commutative law. Commutative law को ये obey नहीं करता. Means A cross B does not equal to B cross A, but A cross B is equal to minus B cross A. अच्छा देखिए यहाँ से इसको हम प्रूव कैसे करते हैं। A cross B आपने क्या लिखा, ए बी साइन थीटा लिखा, ठीक है। मैग्नीट्यूड वेक्टर में क्या लिखा, ए बी साइन थीटा सी कैप। और अगर हम यहाँ से बी क्रॉस ए लेंगे, अगर यहीं से आप बी क्रॉस ए ले लें तो बी क्रॉस ए को क्या लिखेंगे, पहले मैग्नीट्यूड बी फिर ए फिर साइन। अब बताइए एंगल कितना लोगे। अगर ए से बी की तरफ एंगल ले रहे हैं, अगर ए से बी पे एंगल ले रहे हैं तो थीटा है, और बी से ए पे आएंगे तो कैसे वाला एंगल आएगा, माइनस थीटा। हम जानते हैं जब भी एंगल आप मेजर करते हैं तो इधर एंगल कौन सा लेते हैं, पॉजिटिव, और इधर एंगल कौन सा लेते हैं, नेगेटिव। तो जब ए से बी पर जाओगे, बताओ ए से बी पर जाओगे तो कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। जब बी से ए पर आओगे तो कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में एंगल कैसा होगा, माइनस थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन माइनस थीटा, और ये सी कैप। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और ये आ जाएगा बी ए साइन थीटा माइनस सी कैप।
और सी कैप की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो माइनस सी कैप की डायरेक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड होगी। सो बी क्रॉस ए जिसको हम माइनस सी कैप कह रहे हैं दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर ये अपवर्ड है, ये डायरेक्शन है, हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स व्हाई इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। तो अगर ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ है तो बी क्रॉस ए किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग। But second property is it obeys associative law. Associative law जिसको हम distributive law भी कहते हैं, distributive law. What is distributive law? A cross B plus C is equal to A cross B plus A cross C. A can be distributed to B, A can be distributed to C along with the cross product. A can be associated with B, A can be associated with C along with the cross product. So it obeys distributive law. Another important property, the cross product of a vector, the cross product of a vector with itself is a zero. अगर किसी वेक्टर को हम उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, a क्रॉस a, क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, a इंटू साइन जीरो, और जब साइन जीरो लेंगे तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। सो a क्रॉस a विल बी जीरो। तो ये a क्रॉस a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी जीरो। अगर आपको दो वेक्टर को पैरेलल प्रूव करना है, उनके बीच का थीटा एंगल जीरो लेना है, तो उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए एंड द क्रॉस प्रोडक्ट विल बी जीरो। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, उसके एग्जांपल्स हो गए, डेफिनेशन हो गए, डायरेक्शन का रूल हो गया, हमें समझ आ गया। अब हम इसमें क्या ले रहे हैं, इसके हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, किसका, ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्या होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स? इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट। देयर आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, this is x, this is y and this is j. So what about unit vector along this direction I, along this direction j, along this direction k, and what about this I, j, k? All are mutually perpendicular to each other. That's why I, j and k are called orthogonal unit vectors. अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। हमें क्या लेना है, सबसे पहले I क्रॉस I निकालना है, फिर I क्रॉस j, then I क्रॉस k, j क्रॉस I, j क्रॉस j, j क्रॉस k वेक्टर, k क्रॉस I, k क्रॉस j एंड k क्रॉस k। अब देखिए अभी अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी, इनमें से तीन तो ये जीरो हो गए। क्यों जीरो हो गए, I क्रॉस I सिमिलर वेक्टर्स है, इनके बीच का एंगल कितना है, जीरो है। सो I क्रॉस I इज इक्वल टू j क्रॉस j इज इक्वल टू k क्रॉस k इज जीरो। नाउ वी हैव टू फाइंड I क्रॉस j। अब देखिए I क्रॉस j हमने क्या बताई, डायरेक्शन। I क्रॉस j की डायरेक्शन क्या बताई, A क्रॉस B की जो डायरेक्शन है वो क्या है, C कैप, और C कैप A और B दोनों के परपेंडिकुलर है। C cap is perpendicular to A and B and governed by which rule, right hand screw rule, right? अच्छा अब देखिए I और J के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, K आएगा कि नहीं। I और J के परपेंडिकुलर कौन सा है, K और I के परपेंडिकुलर J, J और K के परपेंडिकुलर I। इसका मतलब जब I और J का आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो डायरेक्शन क्या आनी चाहिए, K आनी चाहिए, K के टर्म्स में आना चाहिए। अब देखिए और रूल हमें अप्लाई करना है राइट हैंड स्क्रू रूल। अब हम राइट हैंड स्क्रू रूल के कंपैरिजन में सिंपल वाला रूल देते हैं। अगर राइट हैंड स्क्रू रूल लगाओगे तो देखो ऐसे लगाना पड़ेगा, हम किस पे रखना पड़ेगा, आई पर, ये हिस्सा किस पे रखना पड़ेगा, फिंगर जे पर, और ये स्क्रू ड्राइवर आप होल्ड किया और आपने ऐसे घुमाया आई से जे की तरफ, और जब ऐसे घुमाएंगे तो किधर जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, के कैप। एक तरीका तो ये हुआ, आई का मैग्नीट्यूड यहां से कितना हुआ 1, जे का मैग्नीट्यूड कितना हुआ 1, साइन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 90, और डायरेक्शन जो सी कैप आप ले रहे हैं दैट विल बी के कैप, और ये सब 1 हो जाएंगे इज इक्वल टू के। ठीक है, अब हम इसका आसान तरीका भी बताएंगे। अब ले रहे हैं आई क्रॉस के, आई क्रॉस के में 1 इंटू साइन 90 तो आएगा, और इसमें माइनस जे कैप आएगा, माइनस जे कैप। कैसे आएगा माइनस जे कैप, अब देखो सिंपल तरीका बताते हैं, फॉरगेट अबाउट दिस राइट हैंड स्क्रू रूल। एक रूल और बताते हैं, सप्लीमेंट रूल। अभी हमने बताया था कि हम इसके सप्लीमेंट रूल्स ले लेंगे, जहां जहां आसान होगा हम आसान रूल, अपना बनाया हुआ रूल बता देते हैं आपको। जब बच्चों आप अपना रूल अप्लाई करोगे, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो आसान होते हैं, हम बच्चे खुद भी बना सकते हैं। अब देखो
ये डायरेक्शन बताओ कौन सी है, एंगल की डायरेक्शन कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होती है कि नहीं। तो ये डायरेक्शन तो मानो क्रॉस प्रोडक्ट में पॉजिटिव, और इसके अपोजिट जो क्लॉकवाइज है उसको क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो अगर सीक्वेंस, ये लो सीक्वेंस क्या है, आई जे एंड के, आई टू जे, जे टू के एंड के टू आई, ये सीक्वेंस अगर है तो बताओ कौन से वाली है, आई टू जे, जे टू के टू आई, कौन सी सीक्वेंस होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर इसका अपोजिट ले लें, जैसे जे से आई पर आए, के से जे पर आए, या फिर आई से किस पर जाए, के पर, वो डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। जरा पहले में देखो, आई क्रॉस जे, बताइए इसके अलावा है कि नहीं, आई से किस पे जा रहे हैं, जे पर, तो आई क्रॉस जे क्या होना चाहिए, के वेक्टर। डायरेक्शन कैसी मानी आपने, पॉजिटिव मानी, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। फॉरगेट अबाउट, हम राइट हैंड रूल का हम सब्स्टिट्यूएंट रूल दे रहे हैं, आसान रूल दे रहे हैं, इसमें ना स्क्रू ड्राइवर घुमाना ना कुछ नहीं करना, सिंपल आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये तो आसान है समझना। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है कि नहीं, आई और जे बताओ किस डायरेक्शन में जा रहा, आई से जे पर एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, तो डायरेक्शन कैसे होगी, पॉजिटिव। अब बताओ आई टू के, ये आई है और ये के है, ये डायरेक्शन बताओ, आई टू के पर जब आओगे पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये क्लॉकवाइज वाला हो गया, इसका मतलब ये कैसी डायरेक्शन आ गई, नेगेटिव। अगला बताओ, जे क्रॉस आई, जे से आई पे जाओ, जे से आई पे बताओ कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या आएगा, जे और आई के परपेंडिकुलर क्या है, के वेक्टर माइनस के। ऐसे जे क्रॉस के बताओ, जे से के पे आओ, जे से के पे बताओ, जे से के क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लोगे, पॉजिटिव, और जे और के परपेंडिकुलर क्या है, आई कैप। यहां बताओ के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के और के से किस पे जा रहे हैं, आई, कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, के से आई पर, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव, और के और आई के परपेंडिकुलर क्या है, जे, लगा दीजिए, ठीक है। के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के से जे पे जाएंगे तो डायरेक्शन कैसे होगी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में क्या लोगे, नेगेटिव, और नेगेटिव में कौन सा आएगा, माइनस आई कैप। और ये आपने लास्ट वाले को क्या लिख दिया, जीरो, और इसको भी क्या लिख दिया, जीरो। ये सब बन गए, बताइए बन गए कि नहीं। और ये भी क्या था, पहले वाला भी, ये भी जीरो था। तो ये आसान रूल हुआ कि नहीं, जितने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के प्रोडक्ट्स हैं वो तो पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हैं वो कैसे ले लें, नेगेटिव। और ऐसा लेते वही रिजल्ट आएगा जो इस वाले रूल से आता है, राइट हैंड स्क्रू रूल। So this is the simple rule, we can apply it by taking the cross product of two vectors. तो बताइए समझ आया कि नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया कि नहीं। So this is the cross product of orthogonal unit vectors, ठीक। अब अगले आगे ले स्टेप में आते हैं, वही सारे स्टेप्स लेंगे जो डॉट प्रोडक्ट्स के लिए लिए थे आपने। अब नेक्स्ट इसमें लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स वाला लोगे, बताइए टू वेक्टर्स कौन से है, वेक्टर ए बताओ क्या लिखा था हमने, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये कौन से वाला वेक्टर है, which can be represented in terms of its x y and z components. Similarly you can write b vector, क्या लिखोगे, bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, और हमें चाहिए a क्रॉस b, ये निकालना चाहते हैं। We want to find cross product of these two vectors. अब कैसे निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए इसका रूल क्या होगा, वही ax i प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के कैप, समझ गए। एक तो सिंपल मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड कौन सा है, कौन सा लॉ लगाएं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं। ए एक्स का इनके साथ डिस्ट्रीब्यूशन, ए वाई का इनके साथ डिस्ट्रीब्यूशन, ए जेड का इनके साथ डिस्ट्रीब्यूशन। एक तरीका तो ये है, हम इसका सिंपल तरीका बताते हैं। ये तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फॉर्मूला लर्न करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा, कि इसका आसान तरीका बताते हैं। आसान तरीका क्या है, इसको आप ऐसे लिखो, यू राइट लाइक दिस। देखिए बच्चों, वेक्टर्स में क्या होता है, जहां कोई कॉम्प्लिकेटेड रास्ता बनता है, कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट आता है, वो मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में, उसका हम सिंपल रूल ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी डायरेक्शन की प्रॉब्लम आई थी, हमने राइट हैंड स्क्रू रूल, फंडामेंटल रूल कौन सा है, राइट हैंड स्क्रू रूल डायरेक्शन का। और देखो हमने कितनी आसानी से एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव माना, क्लॉकवाइज में नेगेटिव माना, सारे रिजल्ट्स वही आ गए। तो ये आसान था कि नहीं रूल। इसी तरीके से इसका भी आसान रूल बनाते हैं। आसान रूल ये है, पहले दो वर्टिकल लाइन, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, आई जे के, ठीक है, आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं। अब पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखो, कौन से वाला, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, फिर दूसरा बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। इसको 3x3 का कंपोनेंट वो कहेंगे आप, डिटर्मिनेंट, 3 कॉलम्स एंड 3 रोज, 1 2 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। मैथमेटिक्स में काफी पॉपुलर है, बहुत ज्यादा सीखोगे मैथमेटिक्स में। यहाँ फिजिक्स में आज हम बता रहे हैं, मैथमेटिक्स में आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ए क्रॉस का बी, वो भी 3 कंपोनेंट्स में आएगा, आई जे और के मल्टीप्लायर्स के फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले क्या करो, 3 ब्रैकेट्स बना लो, पहले में आई, और दूसरे में क्या ले लें, जे, और तीसरे में क्या ले लें, के ले लें।
के वैल्यू, ये के प्रोडक्ट वैल्यू 3 आएंगे इसमें। चलिए अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, पहले से स्टार्ट कीजिए। पहले हम देखिए ओपन करना सिखाते हैं, पहले इस ब्रैकेट को फिल करना है। इस ब्रैकेट के लिए क्या करो, आई दोनों में, एक कॉलम में और एक रो में कॉमन है, इसको हाइड कर दो। ये हमने हाइड कर दिया, बताइए क्या बचा, ये बचा इतना पोर्शन। इसमें यहां से स्टार्ट करो, क्रॉस प्रोडक्ट लो, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, फिर ये इतना हो गया, ये तो हाइड ही हो गया था, इसको डायगोनली मल्टीप्लाई किया, माइनस ए जेड बी वाई, माइनस ए जेड बी वाई। बोलो समझ आया कि नहीं? चलो नहीं आया तो अब आएगा। अब इसको करो, अब इसको करो। पहले हमने शुरू किससे किया था, पहले से, अब इससे अगले से शुरू करो। बोलो अगले से शुरू करोगे तो क्या आएगा, ए जेड बी एक्स, ये आया ए जेड बी एक्स, ठीक। फिर इधर से मल्टीप्लाई करो, माइनस ए एक्स बी जेड, ये आया कि नहीं? अब तीसरे वाले पे आ जाओ, थर्ड वाले पे, थर्ड वाले पे आओ, क्या करेंगे, अब फिर पहले से आया, पहले देखिए जब इसमें किया था तो यहां से शुरू किया, जब इसमें आया तो इस वाले से शुरू किया, जब इसमें आएंगे तो फिर पहले लौट के आ जाओ, कितना आएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अब बताइए ये मेथड आसान है कि नहीं लर्न करना? या तो आप क्या करो, इसको वही को इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा करके सॉल्व करें और फिर इसमें फाइंड करें आंसर आता है कि नहीं। अदरवाइज ये रूल लर्न करें, इस रूल से बहुत आसानी से निकल जाएगा। एक बार फिर बता देते हैं, पहले जिसमें आई कॉलम है पहले आई जे के लिख लो, 3 कंपोनेंट्स आएंगे। पहले आई वाले को हाइड करो, फिर जे वाले को, फिर के वाले को। जब आई वाले को हाइड कर रहे हैं तो ये बचा, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डायगोनली मल्टीप्लाई करो, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। फिर आगे वाले से स्टार्ट करो, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। फिर इधर से स्टार्ट करो, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। So this is a way to find the value of A cross B. A cross B का वेक्टर का क्या लिया हमने, ये वैल्यू निकाली। इस तरह से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा देखिए ये तरीका भी था, अगर आप इसी मेथड से निकालना चाहते हैं नॉर्मल मेथड से, तो देखिए नॉर्मल मेथड से आप कैसे निकालोगे, उससे भी रिजल्ट यही आएगा। क्या करना पड़ेगा आपको, हमें ये करना पड़ेगा, पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट तीनों के साथ लेना पड़ेगा। चलिए लेके बता देते हैं इसको भी, यहां से लेके देखिए रिजल्ट सेम आएगा। ए एक्स और इसका क्रॉस प्रोडक्ट तीनों के साथ लो, तो ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, पहला कंपोनेंट बनेगा ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, ठीक। फिर ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, ठीक, प्लस तीसरे वाली टर्म ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। सिमिलरली प्लस क्या आएगा, ए वाई बी एक्स क्या आएगा, जे क्रॉस आई, प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। अब नेक्स्ट आ जाइए, प्लस कौन सा लेंगे नेक्स्ट, देखो ए जेड वाला कंपोनेंट बच जाएगा, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, प्लस ए जेड बी वाई क्या आएगा, के क्रॉस जे, प्लस ए जेड बी जेड क्या आएगा, के क्रॉस के। अब ये के क्रॉस के, जे क्रॉस जे और आई क्रॉस आई क्या हो गया, 0। बाकी सारी वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखो यहां से ये कितना है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी है, के है, ठीक है, आई क्रॉस जे इक्वल टू के। और देखिए कहीं इसमें दूसरे वाली वैल्यू मिलेगी जिसमें जे बनेगा, आई और जे, और देखिए कहां पर आया हुआ है, ये है जे क्रॉस ए, क्या होता है माइनस जे आई क्रॉस जे, ये जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के, तो ये तो हो गया प्लस के, ये क्या हो गया माइनस के, तो के वाली टर्म तो यहां से निकल जाएगी, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, के वाली टर्म आ गई। अब आई वाली टर्म देखो कौन सी आएगी, जे और के बताओ कहां पर है इसमें, पहले वाले देखो ये है जे के, जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के, यहां से लो जे क्रॉस के किसके इक्वल है, आई कैप, आई कैप, तो ये वाली टर्म तो हो गया आई कैप पॉजिटिव। के क्रॉस जे देखो कहां पर है, ये है, ये टर्म कैसे होगी माइनस, तो इसमें आई का मल्टीप्लायर आएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, और इसी सिमिलरली ये आएगा ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स क्या आएगा, ए एक्स बी जेड। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और ये वैल्यूज पुट करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। अब आपके दो ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, या तो ये वाला फॉर्मूला आप लर्न करें फिर सॉल्व करें, इसमें काफी कॉम्प्लिकेशन है लर्न करने में, या ये टेक्निक लर्न कर लें। तो आई थिंक ये टेक्निक लर्न करना ज्यादा आसान होगा, जिसमें एक एक को हाइड करते चले जाओ, पहले से स्टार्ट करो मल्टीप्लाई करके, और ये आप फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज ए वे टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जब हम न्यूमेरिकल्स में लेंगे तो बहुत आसान लगेगा, अप्लाई कर लेंगे तो समझ आ गया ये। चलिए इसमें एक लास्ट पार्ट और बच गया है, वो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। नाउ वी कम टू
दोनों मेथड से हमने बता दिया बच्चों, डायरेक्ट मेथड से भी बता दिया और वैसे भी हमने इसमें बता दिया। अब देखिए इसमें, अब हम ले रहे हैं इसमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, on the previous lecture we have taken the geometrical interpretation of dot product, वहां डॉट प्रोडक्ट कर लिया था, यहाँ किसका लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का लेंगे। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से स्टार्ट करो, व्हाट इज ए क्रॉस बी, दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ऑलराइट। अच्छा, लेट्स हैव दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, सपोज दिस वेक्टर इज ए एंड दिस वेक्टर इज बी, ठीक है। ये हमने एक ए वेक्टर ले लिया और दूसरा वेक्टर कौन सा ले लिया, बी ले लिया, ये पॉइंट पी है और ये कौन सा है, क्यू है। अब बताइए इसमें, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल इसमें कितना हो गया, थीटा हो गया। वेक्टर बी मेक्स एंगल थीटा विद वेक्टर ए, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ए बी साइन थीटा। अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस पॉइंट इज सपोज एम, सो व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर कंपर, व्हाट इज क्यू एम, फ्रॉम फिगर क्यू एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। ले लो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बी, और क्यू एम किसके इक्वल हो गया बताओ, क्यू एम हो गया बी साइन थीटा। तो यहाँ जो ए क्रॉस बी है, ए की जगह तो लिख दीजिए ओपी और बी साइन थीटा की जगह क्या लिख दीजिए, क्यू एम। सो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ए की जगह तो रख दिया आपने ओपी मल्टीप्लाइड बाय, और बी साइन थीटा की जगह क्या रख कर दिया आपने, क्यू एम कर दिया। अब देखो इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से लीजिए, यहां से इसको ये लेते हैं और इसका एक पैरेललोग्राम बना दो, ये पैरेललोग्राम बना दिया आपने, ठीक है। इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया, क्यू डैश ले लिया, ये पैरेललोग्राम बन गया। पॉइंट कौन सा है, पी है। व्हाट इज दिस, ओपी इंटू क्यू एम। Should I write like this, twice into half OP into QM? Can we write it as, क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, क्यों किया, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, OQP, एंड ट्वाइस और द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, दिस इज वन ट्राइंगल, दिस इज अनदर ट्राइंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, इज इक्वल टू एरिया ऑफ parallelogram. Which parallelogram, O, Q, Q dash and P. This parallelogram whose one side is represented by vector A and another side is represented by vector B. तो अगर आपको यहाँ किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेना है और आपको कोई पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम की दो साइड्स दो वेक्टर से रिप्रेजेंटेड है, कौन कौन सी, इफ ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, बी वेक्टर। सो दिस इज ए पैरेललोग्राम of which two sides OP and OQ are represented by vector A and vector B, then this cross product magnitude will be given by the area of this parallelogram. अगर हम इसका एरिया ले लें तो एरिया निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए, then it will give us the area of the parallelogram. तो दोनों बातें कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट can be found by using the this cross product can be found by using this example by taking the area of the parallelogram whose two sides are represented by the two vectors वेक्टर A and वेक्टर B। तो इस तरीके से हमने पहले क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन किया, क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का नोटेशन बताया क्या होता है, फिर हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए, फिर हमने क्रॉस प्रोडक्ट की क्या बताई बच्चों, प्रॉपर्टीज बताई क्या होती हैं, फिर हमने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट सीखा, फिर हमने उसमें ए क्रॉस बी निकाला कंपोनेंट्स के टर्म्स में फॉर्मूला डिटरमिनेंट की हेल्प से, और लास्ट में हमने डिस्कस किया है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स।